Okay, good morning, students. Students, am I audible? Good morning, sir. Good morning. मुझे सुन रहे हो? ब्लैक बोर्ड विजिबल है ना? क्लियर? Yes, sir. Okay, very good. So देखो, yesterday I have discussed about how to write IUPAC nomenclature of complex compound, in which I have discussed some important points. याद है ना जो डिस्कस किया था? सो हेलो, हेलो. Yes, sir. ओके. सो आज हम जहां से कल लास्ट हुआ तो वहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान दो. दैट इज द important point. I'm going to start numerical prefixes to indicate the number of ligands. आपको याद होगा कि अगर एक ही तरफ के बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, etc. That is used to indicate the number of ligands, right? If there are many ligands of the same type, then the prefixes like di, tri, tetra, penta, hexa, etc. are used to indicate the number of the ligands. For example, if there are 4 NH3 molecule, listen here you all. If there are 4 this ammonia molecule, NH3 molecule as ligands, then we write tetraamine. Tetraamine. Understand? Note that both A, that is the last A of tetra, and first A of amine, that is A, are to be retained. ध्यान रखना है. Whenever you will write the term tetraamine, then the last A of this tetra and first A of this amine are to be retained. दोनों मेंशन करना है. ऐसा नहीं कि एक ए को आप ड्रॉप कर देंगे मिस्टेक हो जाएगा. टेट्राएमीन, TETRAAMMINE. So you will have to write here tetraamine. Clear? Any problem? Hello? No, sir. Okay. एक और रूल बोल रहे हैं, नोट कीजिए. When the same of polydentate ligands, when the name of polydentate ligands includes a number, when the name of polydentate ligands includes a number, that is ethylene diamine, that is in symbol EN. आपको बता चुके हैं. Ethylene diamine, right? Then we use BIS, TRIS, TRIS, TETRAKIS, PENTAKIS, etc. like that, instead of di, tri, tetra, penta, and so on. We should use this BIS like that for such type of number when the name of polydentate ligands includes a number. No problem? पेंटा वाला क्या लिखे हैं? PENTAKIS.
PENTAKIS, bis, tris, tetrakiss, pentakis, etc. bis डाई के लिए, ट्रिस ट्राई के लिए, टेट्राकिस टेट्रा के लिए, पेंटा के लिए पेंटाकिस, एंड सो ऑन. क्लियर? Yes, sir. Okay. Now next point is the ending of names. Ending of names. ध्यान दीजिएगा इसको. Dear friends, positive and neutral complexes have no special ending. Positive and neutral complexes have no special ending, but the anionic complexes always end in the suffix ate, and generally in this case Latin names of certain metals are commonly used. अगर एनायनिक लिगेंड्स है तो मेटल का जो लैटिन नेम होता है उसके लास्ट के एंड में हम लोग ATE एज सफिक्स यूज करते हैं. एट. फॉर एग्जांपल लीड के लिए यूज करेंगे हम लोग प्लम्बेट. नोट कर लीजिएगा. फॉर लीड वी यूज प्लम्बेट. आयरन Fe के लिए फेरेट. Fe के लिए फेरेट. सिल्वर के लिए आर्जेंटेट. आर्जेंटेट. कॉपर के लिए क्यूप्रेट. कॉपर क्यूप्रेट. CUPRATE क्यूप्रेट. For zinc, zincate. For cobalt, cobaltate. Platinum, platinate, etc., etc. So we use ATE, ध्यान रखिएगा, as suffix. कब? जब एनायनिक लिगेंड्स अटैच होगा तब. In case of anionic complexes, always end in suffix ATE. We should use. अब इसका एक दो हम यूज करके बता रहे हैं, वो देखिए. नोट कर ले इसको. हेलो. No. ओके. हम इसको यूज कर रहे हैं, वो देखिए. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हेलो कॉपर क्यूप्रेट. CUPRATE क्यूप्रेट. CUPRATE क्यूप्रेट. फॉर जिंक जिंकेट. प्लेटिनम प्लेटिनेट. इसको यूज करना है. क्लियर? हेलो सर. Yes, टेन का sir. क्या होगा? क्या चीज बोलो? 10 का. किसका? टीन का. 10. यस सर. हाँ, अस्टानेट. 14 अस्टानेट. STANNATE. 14 के लिए STANNATE स्टैनेट. क्लियर? यस सर. ओके. ध्यान दीजिए एक चीज और, तब इसका नेमिंग बताते हैं. जनरली oxidation state of the central metal atom or ion is mentioned at the end of the name with the help of Roman numerals. Roman numerals यानी oxidation state of the central metal atom / ion are expressed in Roman numeral like 1, 2, 3, 4 or even 0. We should have
if observation number is 0, then we can write here 0 and enclosed in bracket. अगर 0 भी है तो इसको आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं ऐसे। 1 है तो ये सर हाँ बोलो। सर बोर्ड पे सर लाइट चमकता है सर, दिखता नहीं सही। अच्छा, इसको नोट कर लो, हम बोल रहे हैं, ऊपर लिख देंगे। ऊपर दिखाई दे रहा है ना, क्लियर? यस सर, यस सर। अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज रिटन विद द हेल्प ऑफ रोमन न्यूमरल्स एंड केप्ट इन ब्रैकेट। जैसे अगर 1 है तो ऐसे, 2 है ऐसे, 3 है ऐसे, इवन 0 है तो भी आपको लिखना है ढंग से। सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखते हैं रोमन न्यूमरल में इस ब्रैकेट के अंदर। यही बताने जा रहा था, ठीक है? अब बताओ, यस सर। एग्जाम्पल एक देखिए कैसे लिखिएगा। सो अभी बताओ, उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट, क्वेश्चन है K3FeCN6 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कंपाउंड इज K3FeCN6, इसका होल 6 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कैसे लिखेंगे नाम इसका? देखिए ये हुआ आपका पोटासियम और यहां Cn नेगेटिव लिगेंड से बालक, ध्यान रखना है। Cn इज एनायनिक लिगेंड्स, इसलिए यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में AT लगा देंगे। सो पोटासियम 6 के लिए लिखिए हेक्सा साइनो, और एनायनिक लिगेंड्स है, यहां हो जाएगा फेरेट। What is the oxidation state of iron in this case? Anybody else? 3. Listen here. Potassium hexacyanoferrate 3. In this compound, oxidation state of iron will be 3. So इसको रखा मैंने रोमन न्यूमरल्स में in the bracket. Clear? और एनायनिक लिगेंड्स है, यहां लिखा फेरेट, AT लगाया मैंने, जस्ट अभी जो रूल डिस्कस किया था उस बेसिस पर। क्लियर हुआ? हेलो, ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज आपको नजर रखना है। एक दो पॉइंट और बताते हैं जो छोटा छोटा है, तो ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुड नॉट स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। कंपाउंड के नेम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट आपको नहीं करना है। ऑलवेज कीप योर माइंड। क्या बताया मैंने? नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुड नॉट स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, हमेशा शुरू करना है स्मॉल लेटर से। जैसे मैं लिखा है P पोटासियम, कैपिटल P नहीं लिखना है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट? नेक्स्ट थिंग याद रखिएगा, इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्सेज देयर शुड बी ए गैप बिटवीन द नेम ऑफ काउंटर आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटायरिटी। इसमें थोड़ा गैप देना है आपको। कब? व्हेन आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो। क्लियर? सर एक बार फिर से बोलिए। नोट कर लो। In the ionic complexes, there should be a gap between the name of the counter ion, and of the complex entirety, नोट कर लिए आप लोग? यस सर। ओके, एक पॉइंट और नोट कीजिए।
स्पेशली फॉर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फॉर नोट कीजिए, फॉर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस। फुल नेम ऑफ नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, full name of non-ionic complexes should be written, non-ionic complexes should be written as one word without any gap, should be written as one word without any gap, इसमें कोई गैप नहीं देना होता है, स्पेशली फॉर नॉन आयोनिक कंप्रेसेस के लिए। आपको नाम लिखना है एज वन वर्ड के रूप में, कोई गैप नहीं देना है। क्लियर? हेलो, यस सर। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रूल्स which are used to how to write IUPAC nomenclature of complex compound. For practice एक दो हम बता देते हैं, बाकी आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहें घर में, अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, we have to write only FeCN whole 6 4 minus. What will be the IUPAC name of this compound? A square bracket FeCN का whole 6 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर 4 माइनस है। We have to write the IUPAC name of this compound. क्या होगा नाम इसका? हेलो, देखिए इसका नाम होगा हेक्सा साइनो फेरेट, और यहाँ ऑक्सीडेशन कितना होगा इसका? 2 आयन। इसका x मान लो, यह -1 है, इसका -4 हो जाएगा। x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू -4 प्लस 2। सो हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन इस कंपाउंड का नाम होगा। क्लियर? हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट नेम एक और दे रहा हूं, उसको करिए नहीं तो हम बताएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट CO कोवाल्ट है, EN का होल थ्राइस, CO कोवाल्ट, EN का होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, ऊपर 3 प्लस। राइट द IUPAC name of this compound. CO EN का होल थ्राइस, EN मतलब इथेन 1,2 डायमीन। देखो बात आप बता रहे हैं यहाँ पर, इसी कंपाउंड के लिए हमने बताया था we use base ट्रिस लाइक दैट। 3 के लिए क्या बताया मैंने यहाँ? ट्रिस, Trace. ट्रिस TRIS ट्रिस, और सॉल्व ब्रैकेट, और EN के लिए इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज करिए, स्मॉल ब्रैकेट को, इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का यहाँ? 3। 3. ओके, आयन। सो ट्रिस स्मॉल ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। राइट? क्लियर? Yes, sir. इसका नाम क्या होगा? NiCO का होल 4, सेंट्रल एटम निकेल है, CO यहाँ कार्बोनिल ग्रुप हुआ, न्यूट्रल लिगेंड है, ये होल 4 इसका नाम बताना है। NiCO का होल 4 क्या नाम होगा इसका? Tetracarbonyl nickel हाँ, 0.
कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका? 0. ओके, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट. सो टेट्रा कार्बोनिल जीरो नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड है बालक, CO कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है. टेट्रा कार्बोनिल निकेल ब्रैकेट में 0. ओके, वेरी गुड. टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0. तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? हेलो, Yes, sir. ओके, वेरी गुड. यस अब हम शुरू करें बालक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. देखो बालक, ध्यान देना, फॉर सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन RIP टेचर से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा फॉर नेमिंग के लिए, 2 क्वेश्चन. और अभी बता रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. इसमें से क्वेश्चन निश्चित रहेगा, आपको इग्नोर मत कीजिएगा. डालो हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. मैं शुरू कर रहा हूं अब. एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. Application of valence bond theory. Clear? Hello. यस सर हाँ, देखो बालक, in such type of question you will have to find the hybridization state, their geometry and magnetic behavior. इसमें आपको 3 चीज पूछता है. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड. ये 3 चीज डिस्कस करना है यहां पर. फ्रेंड्स, इन एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जनरली we discuss 2 types of compound. First, complexes with coordination number 6 and complexes with coordination number 4. Complexes with coordination number 6 and complexes with coordination number 4. ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं. सो फर्स्ट, complexes with coordination number 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा हमेशा. इट शोज 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. फर्स्ट, आइदर D2sp3 और sp3d2. D2 पहले तब आएगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, which we have to know this term with the help of इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो बताएंगे वहां पर. बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D2sp3 एंड वीक फील्ड होगा तो sp3d2 बनाएगा. और इन बोथ द केसेस ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल. इफ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज either D2sp3 or sp3d2, in both the case they show octahedral geometry. Octahedral geometry. And regarding the determination of magnetic behavior, if last electron is unpaired, the complex will be paramagnetic, and if last electron is paired, the complex will be diamagnetic. ध्यान रखिएगा.
If last electron unpaired, it is paramagnetic. And if last electron is paired, the complex will be diamagnetic. ये तीन चीज दिमाग रखना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक से तैयार करना है। अब हम बताने जा रहे हैं प्रोसेस कैसे निकालेंगे। सो मिटाएं इसको, रुक जाइए सर। हाँ पूछ रहा हूं, ठीक है नोट कर लो। नोट कर लिए? सर ऑक्टाहेड्रल का क्या लिखे है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये दोनों ही केस में D2sp3 या sp3 D2 होगा अगर इसका स्टेट हाइब्रिडेशन स्टेट, तो दोनों केस में ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए देखा जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। यस सर हो गया। ओके, अब मैं बनाने जा रहा हूं इसका प्रोसेस कैसे होगा। सो और कैसे निकालेंगे, इस तीनों चीज बताया। सो आप ध्यान देके देखिए, यहां पर एप्लीकेशन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। Okay, thus students, the given compound is, suppose अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस, इसका निकालना है हाइब्रिडेशन स्टेट, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। पहले हिंट कर रहा हूं, here CN cyano group is considered a strong field ligand, याद रखिएगा, CN is considered a strong field ligand, or if there a strong field ligand is present, it forms inner orbital complex or low spin complex, ध्यान रखिएगा। It is an example of inner orbital complex. If there is a strong field ligand is present, it forms inner orbital complex and also called low spin complex. और weak होगा अगर तो outer orbital complex and high spin complex होगा वो, राइट। अब मैं शुरू कर रहा हूं, इसको मिटाएं। यस सर। प्रोसेस देखिए, इसको मिटा रहा हूं अब, राइट।
इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। बताया ना अभी, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। Iron acts as central element in the given compound. Iron atomic number 26. Whenever I will write the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्या होगा लास्ट में? बता सकते हो? 4s2 and 3d6, right? Any problem? No, sir. No. हमें No, इससे मतलब है लास्ट से भरा यहां से, इससे मतलब नहीं है। ये हुआ आपको आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, हमको रिक्वायरमेंट इसकी है, ध्यान रखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं, डी को पहले करते हैं 3d6 4s2। मैं लिख रहा हूं इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन D6। डी में कितने ब्लॉक बनेंगे? डी 5 ब्लॉक, that is ground state configuration. One, two, three, four, 5, 4s and 4p, 3d, 4s, 4p, 4p blank है यहां 0, तो कर सकते हैं आप। D6 एट फर्स्ट सिंगली फिल कर लो, देन पेयरिंग स्टार्ट। देखो 1 2 3 4 5 6, एस में 2 है, राइट? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स इफ यू हैव, एनीबॉडी एल्स? No, sir. नो, No, sir. राइट। अब बताओ यहां पर आर का कितना ऑक्सीजन स्टेट है? 2, बताया ना मैंने, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। सो अब यहां लिखना है Fe2, ये बताया इसका ऑक्सीजन स्टेट को, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तभी तो 2 बनाया। आउटर मोस्ट कौन सा है? आइदर 3d और 4s, which one is 4s. 4s? वेरी गुड। अब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो, 1 2 3 4, देखिए 4s ब्लैंक हो गया आपका। यहां का दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बनाया Fe2 प्लस, राइट? और 3 यहां का रहेगा, वो ब्लैंक है 4p में। क्लियर? हेलो, Yes, sir. अब देखो सर बालक, एक बार फिर से बोलिएगा सर, दिख नहीं रहा है बोर्ड पे नीचे वाला। ये वाला सर ग्राउंड स्टेट के नीचे जो लिखे हैं ना, नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर शो कर नो दे, सर। ऊपर दिखा दे इसको। यस सर, यस सर। ठीक ठीक ठीक, हम यहां दिखा रहे हैं इसको, देखो बालक, इसको मिटा दें, इसको इरेज कर दें। यस Yes, सर। sir. ठीक, अब क्लियर हो गया, ऊपर लिखेंगे। देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर Fe2 का लिखना है हमको ग्राउंड स्टेट में। तो मेरा डी में तो इंटैक्ट था 6, यहां से यूज कराया नहीं हम लोग,
लूज मेरा हुआ है 4s से और 4p मेरा वैसे ही है ब्लैंक 4s 4p या 3d है राइट वे टू राइट हियर FECN6 4 माइनस में ध्यान दीजिएगा बालक इस केस में अभी मैंने हिंट किया था CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ए बनाएगा इनर पेयरिंग तो एक ट्रांसफर ए आ जाएगा आपको यहां और दूसरा आ जाएगा आपको यहां अब ए हो जाएगा पेयर 1 2 3 4 ये पेयर हो गया ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया देखिए 2 4 6 था अब 2 to 4 to 6 यहां आ गया दो ब्लैंक हो गया मेरा तो 6 चाहिए था हमको साइनो 6 है यहां ये देखिए देखो बालक अब इसके साथ एक एक CN को शो कर लीजिए देखिए 3D 4S 4P D में 2 हो गया D2 एक S एंड P में 3 ये निकल गया आपको D2SP3 सेट निकल गया द गिवन कंपाउंड FACN6 4 माइनस का तो ये हो गया आपको हाइब्रिडेशन स्टेट D2SP3 ज्योमेट्री क्या बताया मैंने अभी इसके लिए ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल और देखो बालक यहां पेयर्ड है लास्ट क्या अनपेयर्ड है हेलो पेयर्ड पेयर्ड है क्या हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक डायमैग्नेट डायमैग्नेटिक यहां देखना है बालक लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और अनपेयर्ड है ध्यान रखना है यहां पेयर्ड है डायमैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड होता तो हो जाता पैरामैग्नेटिक यही निकालना है आपको क्लियर हुआ Excuse me, sir. हाँ बोलो सर एक बार फिर से Sir, बताइए ना 4D. हाँ हेलो Sir, 4D का भी तो ऑर्बिटल खाली था ना, तो उसका यूज नहीं कर सकते, तो sp3d2 भी तो हो सकता था. कैसे D2 कैसे होगा हमने बताया CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से हाँ. इनर करता है ये तो ये पेयरिंग करके यहाँ पेयर किया ये दो ब्राइट हो गया अगर वीक फील्ड होता तो बाहर जाता तब डी यूज कर सकते थे sp3 तब डी होता उसका यूज ऑलवेज ध्यान मतलब वीक होगा तो अंदर वाला यूज नहीं करेंगे, नहीं पेयरिंग नहीं होगा. हाँ और स्ट्रॉन्ग होगा तो अंदर का पेयरिंग कर लेंगे बताया था शुरू में D2 तब बनाएगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और वीक रहेगा तो sp3 D2 बना लेगा ध्यान रखिएगा इस चीज को और सर हमारा लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाँ हम बताएं एट द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं पढ़ाऊंगा इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएंगे इसके बाद हम सर बोर्ड नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा ब्लर है बहुत ज्यादा ब्लड है देखो Yes, sir. यस सर अब कुछ क्लियर हुआ देखिए नो सर और नजदीक करके देखते हैं सर नेटवर्क ठीक है हाँ देखिए इस चीज को ये बनाएगा D2sp3 क्लियर हो गया ये हेलो